नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। मुल्क के दस्तूर की मंजूरी की 70वीं सालगिरह के मौके पर आज राजभवन में गवर्नर टी सुंदरराजन ने एक खुसूसी तकरीब मुनक्किद की। इसमें चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, उनकी काबीनी रफका, स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, सदनशीन खानूसाज काउंसिल जी सुगेंदर रेड्डी, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट RS चौहान, चीफ सेक्रेटरी SK जोशी और दूसरे आला सरकारी अहदेदारों ने शिरकत की। गवर्नर ने दस्तूरसाज असम्बली में दस्तूर की मंजूरी को एक तारीख साज वाकया करार दिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमारा दस्तूर इंसाफ और मसावत का लंबरदार है। I think it would be appropriate for me to speak in Telugu. We just heard the Honorable CJ delivering his remarks in English. Probably we may have to hear another speech in English. So not to undermine the mother tongue, I prefer myself to speak few words in Telugu. గౌరవనీయులు మన రాష్ట్ర గవర్నర్ గారు శ్రీమతి తమ్మిళసై సౌందరరాజన్ గారు, గౌరవనీయులు మన రాష్ట్ర ప్రధాన న్యాయమూర్తి శ్రీ రాఘవేంద్ర సింగ్ చౌహాన్ గారు, గౌరవనీయులు మన శాసన మండలి అధ్యక్షులు, గౌరవనీయులు మన శాసనసభ స్పీకర్ గారు, గౌరవనీయులైన మన రాష్ట్ర ఉన్నత న్యాయస్థాన న్యాయమూర్తులు, గౌరవనీయులైన మంత్రివర్గ సహచరులు, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు, శాసనసభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న చీఫ్ సెక్రటరీ గారు, ఇతర అతిథులందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. 2015లో భారత ప్రభుత్వం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఎవరైతే డ్రాఫ్ట్ కమిటీ చైర్మన్గా భారత రాజ్యాంగాన్ని మనకు ప్రసాదించారో వారి యొక్క 125వ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ రాజ్యాంగం యొక్క 70వ దినాన్ని ఘనంగా నిర్వహించాలని చెప్పి ప్రధానమంత్రి గారు ప్రకటించారు. ఆ నేపథ్యంలో యావత్తు దేశంతో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం కూడా ఈరోజు అద్భుతంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. మన గవర్నర్ గారు ఈ ఉన్నతమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని మనందరినీ ఇక్కడికి రప్పించి రాజ్భవన్లో నిర్వహిస్తున్నందుకు నేను నా పక్షాన, రాష్ట్ర ప్రజల పక్షాన గవర్నర్ గారికి అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. దీని తర్వాత శాసనసభలో కూడా, శాసన మండలిలో కూడా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించబోతూ ఉన్నారు. గౌరవ స్పీకర్ గారికి, గౌరవ శాసన మండలి చైర్మన్ గారికి కూడా నా అభినందనలు ఈ సందర్భంగా వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాను. ఇప్పుడే మన చీఫ్ జస్టిస్ గారు చెప్పినట్టుగా వీఆర్ రెడ్ టు రీచ్ సో మెనీ ఆస్పిరేషన్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ఇట్ ఈస్ ట్రూ. All of us have to accept very sincerely and try to do the best effort possible by all of us. అయితే ప్రపంచం మొత్తం ప్రజాస్వామ్య ప్రస్థానంలో కొన్ని చిన్న చిన్న తేడాలతో ఉండవచ్చు. ప్రయాణిస్తున్న ఈ సందర్భంలో మన దేశంలో కూడా మన రాజ్యాంగం 7 దశాబ్దాలుగా పరిపుష్టంగా కొనసాగుతుంది. అఫ్కోర్స్ మనది ఫ్లోయింగ్ కాన్స్టిట్యూషన్, డైనమిక్ కాన్స్టిట్యూషన్, దాదాపు 70-80 సార్లు అనేక మార్పులు చేర్పులకు లోనైనప్పటికీ ప్రజల ఆశలను అందుకోవటంలో సంపూర్ణమైనటువంటి మనకు స్వేచ్ఛ, అధికారం, అవకాశం సంపూర్ణంగా కల్పిస్తూ ఉన్నది. అందువల్ల రాజ్యాంగ స్ఫూర్తితో ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరం కూడా మనందరం ఈరోజు ఈ పవిత్రమైన దినం రాజ్యాంగం మనకు ప్రసాదించినటువంటి హక్కులు, బాధ్యతలతో పాటు మన కర్తవ్యాన్ని భారత పౌరులుగా విస్మరించకుండా మరొక్కసారి మన భారత రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి అందరికీ నమస్కారం. I respectfully invite our Honorable Chief Minister, our Honorable Chief Justice, Honorable Cabinet colleagues, Honorable Chairman, Telangana Legislative Council, Honorable Speaker, Honorable Chairman, Telangana Legislative Assembly, Honorable Judges, Honorable Deputy Chairman, Honorable Speakers, respectful and honorable MLAs, MLCs, media, and my respects to one and all.
I'm really very happy that the Constitutional Day is celebrated today because all the top constitutional heads are here, and I salute the father of Constitution, our respectful B.R. Baba Saheb Ambedkar. Actually, he did a excellent job of compiling the Constitution. The Constitution is not only completes the procedure of our country, the law and order, and what are the Constitution rules to be followed, but it all gives protection to each and every citizen. That is the beauty of our Constitution. हैदराबाद के मेयर बी राममोहन ने बायोडाइवर्सिटी फ्लाईओवर पर हफ्ते को हुए हादसे में जख्मी कुबरा बेगम की इयादत की, जो खानगी हॉस्पिटल में जेर इलाज है। उन्होंने जेएसएफसी की तरफ से जख्मी खातून और उनके वालिदीन की हर मुमकिन मदद का तयक़ुन दिया। 70 साल खबर आज के दिन हमारे दस्तूर को मंजूरी मिली थी। उसी की मुनासिबत से स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, सदनशीन खानूसाज कौंसिल जी सुकेंद्र रेड्डी की क़यादत में रियासती अरकान असेंबली और कौंसिल ने आहत असेंबली में बाबा दस्तूर B.R. अम्बेडकर के मुजस्समे की गुलपोशी की और उन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमाका, रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी, MLC जीवन रेड्डी और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। ఈ రాజ్యాంగం రూపురేఖలు దిద్దుకున్న తర్వాత దానికి అనుగుణంగా ప్రభుత్వాలు పరిపాలన కొనసాగిస్తున్నటువంటి ఈ శుభ సందర్భం నేటికి అమలు చేసి 70 సంవత్సరాలు అవుతా ఉంది। ఈ 70 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నటువంటి సందర్భంలో ఈ యొక్క పండుగను, ఈ రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని ఇప్పుడే రాజ్భవన్లో గౌరవనీయులు రాష్ట్ర గవర్నర్ గారి ఆధ్వర్యంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, గౌరవ చీఫ్ జస్టిస్ గారు కలిసి మేమందరం కూడా పాల్గొని వచ్చాం। ఇక్కడ కూడా శాసన మండలి చైర్మన్ గౌరవనీయులు సుకేందర్ రెడ్డి గారు, మా రాష్ట్ర శాసనసభ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి గౌరవనీయులు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారితో పాటు అనేక మంది గౌరవ మంత్రివర్గ సభ్యులు, గౌరవ శాసన మండలి సభ్యులు, శాసనసభ్యులు కూడా హాజరయ్యారు। ఇది మా అందరికీ ఒక స్ఫూర్తి। మేమందరం కూడా శాసనసభ్యులుగా, శాసన మండలి సభ్యులుగా, మంత్రులుగా, స్పీకర్గా, శాసనసభ చైర్మన్గా, డిప్యూటీ చైర్మన్గా మేము కూడా రాజ్యాంగం పైన ప్రమాణం చేశాం। రాజ్యాంగ స్ఫూర్తితోనే పనిచేస్తూ ఉన్నాం। ఇది ఒక గొప్ప గ్రంథం మనకు। రాజ్యాంగం అంటే కులాలకు, మతాలకు వేరే వేరే గ్రంథాలు ఉంటే ఈ భారతదేశ 130 కోట్ల మంది ప్రజలకు ఏకైక గ్రంథం రాజ్యాంగం। ఆనాడు ఎంతో మంది మేధావులు రాష్ట్రం, దేశాలు ఎట్టుండాలనేటువంటి యొక్క ఆలోచనతో ఈ యొక్క గ్రంథాన్ని, ఈ రాజ్యాంగాన్ని రచించారు। ఇది చాలా గొప్ప విధానం। అదేవిధంగా ఈ రాజ్యాంగంలో కొన్ని సవరణలు కూడా చేశారు। ఇప్పటికీ 103 సవరణలు జరిగినాయి। అంటే పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం, ప్రజల సౌకర్యార్థం కోసం అప్పుడప్పుడు రాజ్యాంగ సవరణలు కూడా చేయాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చినప్పుడు కూడా చేశారు। ఇప్పటికీ 103 రాజ్యాంగ సవరణలు కూడా పార్లమెంట్ ఆమోదించింది। కాబట్టి ఈ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ డే గొప్ప దినం। రాష్ట్ర ప్రజలు, ప్రభుత్వ యంత్రాంగం, ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ జరుపుకుంటున్నటువంటి ఒక గొప్ప పండుగ।
क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान जोड़ी, हैदराबाद। रियासती मंत्री एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने आज सिकंदराबाद के बंसीलाल पेट डिवीजन में जीएसएमसी की तरफ से तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात की तामीर के काम का मुआयना किया। उन्होंने तामीर के काम में तेजी लाने की हिदायत दी। कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार और मकामी कारपोरेटर भी उनके हमरा थे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत दस्तूर साज B.R. अम्बेडकर के नजरियात पर अमल करते हुए मुल्क के इत्तेहाद और सालिमत को बरकरार रखेगी और वो उसकी पाबंद है। उन्होंने कहा कि हुकूमत 130 करोड़ हिंदुस्तानी अवाम की खिदमत करने का अहद भी करती है। अमित शाह ने यौम दस्तूर पर अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि दस्तूर हिंद हमारी जमहूरियत की असल रूह है। अपोजिशन जमातों ने आज दस्तूर की मंजूरी की 70वीं सालगिरह के मौके पर पार्लियामेंट के अहाते में बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे के रूबरू एहतजाज किया और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर का बायकाट किया। अपोजिशन कायदीन ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर दस्तूर की धज्जियां उड़ा देने का इल्जाम आयद किया और कहा कि गुज़िश्ता 6 वर्षों में जिस तरह दस्तूर का मजाक उड़ाया गया और उसकी खिलाफ वर्जियां की गई, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने महाराष्ट्र का खास हवाला दिया, जहाँ गवर्नर ने सुबह की अवलिन सातों में सदर राज की बर्खास्तगी की सिफारिश की और रवा रवि में बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ दिला दिया। मुजाहिरीन में कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह, साबिक सदर कांग्रेस राहुल गांधी, लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी वगैरह शामिल थे। क्या यार पीछे करे यार थोड़ा सा ले लिया ना, कैमरा पीछे कर लो यार। अबे यार ये देखना, ये कोई आगे आने के लिए भाई अब धक्का मत मारना। प्रीतम थोड़ा नीचे हो जाए, प्रीतम थोड़ा नीचे हो जाए। Attack in the city of Mumbai, large number of innocent people were killed, security officers were martyred. We will first observe 2 minutes silence as our collective homage to those who gave their lives. हो गया यार, थोड़ा सा हमारे लिए करने दो ना। आ जाओ आ जाओ। We will all different parties will decide. Please, we will now be reading parts of the Constitution. Right to education. States shall provide free and compulsory education. All children age of disability, ability, and children whose conditions with regard to access to has been referred by the President of the Legislature of that state for expressing its views. Thereon, in such period as may be specified in reference. Article 14, equality before law. The state does not deny to any person equality before the law on equal protection of the law within the territory of India. 15. Prohibition of discrimination
grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. In the Constitution of India, preamble, we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. बीजेपी के सीनियर रुकन असम्बली कालिदास कोलंबकर को महाराष्ट्र असम्बली का अबूरी स्पीकर मुकर्रर किया गया है। आज शाम राजभवन में मुनक्किदा एक तकरीब में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें ओहदे का हलफ दिला दिया। कोलंबकर कल असम्बली की कार्रवाई चलाएंगे और नए मुंतखबा अरकान को रुकनियत का हलफ दिलाएंगे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार के मुस्तफी हो जाने के बाद उनकी हुकूमत अक्सरियत से महरूम हो गई है और वो अपने ओहदे से मुस्तफी होने जा रहे हैं। 54 रुकनी एनसीपी के लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर की हैसियत से अजीत पवार ने बीजेपी की तायद की थी और उनके इस्तीफे के बाद हुकूमत के पास दरकार अक्सरियत नहीं रही। फडणवीस ने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि वो गवर्नर से मुलाकात करके अपना इस्तीफा पेश कर देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी घोड़ों की खरीदो फरोख्त में मुलविस नहीं होना चाहती, बल्कि वो जिम्मेदार अपोजिशन का रूल निभाएगी। ये पूछे जाने पर कि बीजेपी को अजीत पवार की तायद शरद पवार की हिकमत अमली का नतीजा थी, फडणवीस ने कहा कि इस पर शरद पवार ही तबसरा कर सकते हैं। फडणवीस ने कहा कि अजीत पवार ने उन्हें बताया कि वो शख्सी वजूहात के बिना मुस्तफी हो रहे हैं। संपूर्ण बहुमत दिया, हम लोगों ने जीती और पिछले 5 वर्षों में जो काम महाराष्ट्र में हमने किया 40% सीटें वो जीत पाई। उसको तो ये जनादेश एक मैंडेट हक में जनता के वोटों से मिला और संपूर्ण बहुमत के साथ जनता ने हमको चुनकर दिया। इसलिए मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ये जो जनादेश मिला पहले दिन से ही, ये जैसे महायुति को जनादेश था घोषणा की, उसमें भी ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी को था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें लड़ी उसमें से तकरीबन 67 से 70% सीटें हम लोगों ने जीती
और शिवसेना जितनी सीटें लड़ी उसमें मात्र 44% सीटें वो जीत पाई। तो ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी के हक में जनता ने दिया था। दुर्दैव से नंबर गेम इस प्रकार का है कि जिसमें हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ सकती है, ये देखते हुए शिवसेना ने पहले दिन से ही बार्गेनिंग शुरू की और घोषणा की, हम भले ही महायुति में चुनकर आए हो, किंतु हम सभी पार्टियों से बात करेंगे और हमको जहां मुख्यमंत्री मिलेगा वहां पर हम उनके साथ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमको 2.5 साल मुख्यमंत्री देने का वादा ये किया गया है, और उसके बाद जो बिल्कुल गलत बयान था। हम सबने देखा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, हमारे अध्यक्ष अमित भाई शाह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया, कभी भी शिवसेना को 2.5 साल के मुख्यमंत्री का वादा नहीं किया गया था। जो वादा नहीं किया था उसको छोड़कर जो वादे किए थे उसको पूरा करने के लिए हम कभी भी तैयार थे। लेकिन 2.5 साल के मुख्यमंत्री का जो वादा नहीं किया था उस पर अड़कर हमसे बातचीत करने की जगह शिवसेना ने तुरंत कांग्रेस और एनसीपी से बातचीत शुरू की। तो उनकी मंशा ये स्पष्ट थी कि वे उनके साथ सरकार बनाना पहले दिन से चाहते थे। और उसके बाद जो राज्य में हुआ हम सबने देखा। असेंबली की मियाद जब समाप्त हुई, सरकार बनी, उस समय उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी को बुलाया गया। और राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे पास 105 और हमारे जो अपक्ष है इनका समर्थन हासिल है। इससे ज्यादा लोग हमारे पास अभी नहीं है, इसलिए हम सत्ता नहीं बनाना चाहते। ये सैद्धांतिक भूमिका हमने रखी, मैंने इस्तीफा भी दिया, समय निकल गया। उसके बाद शिवसेना को बुलाया गया। शिवसेना दावा लेकर इस प्रकार से गई मानो 145 लोग उनके पास है। और उस समय सारे मीडिया ने भी दिखाया कि सरकार बन गई। पर वो दावा कितना खोखला था और किस प्रकार से एक मजाक उस दावे का बना, हम सबने देखा। न कोई चिट्ठी आई, न कोई सरकार बनी। उसके बाद एनसीपी को बुलाया गया, उन्होंने भी नंबर नहीं इसलिए नकारा। और राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। उसके बाद 3 पार्टियां एक साथ चर्चा करते करते 10 दिन से ज्यादा समय निकल गया, लेकिन ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी अपना तय नहीं कर पाए। इसका कारण ये था कि इनका कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम एक ही था, भारतीय जनता पार्टी को हटाना और सत्ता पाना। और इसलिए ये सारे लोग एकत्रित आकर सरकार बनाना चाहते हैं, जिनकी वैचारिक भूमिका भी एक दूसरे से नहीं मेल खाती। विशेष रूप से शिवसेना और कांग्रेस, शिवसेना अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी कहती है। ये बात अलग है कि उनका हिंदुत्व अभी सोनिया जी के चरणों में नतमस्तक है, क्योंकि कल हमने देखा कि शिवसेना के नेता सोनिया जी की कसम खा रहे थे, लेकिन वो उनका लागू है। और इसलिए ये जब बना नहीं पाए और राष्ट्रपति शासन लागू था, ऐसे समय श्री अजीत दादा पवार इन्होंने हमको समर्थन देने की चर्चा की और उन्होंने कहा कि हम समर्थन देकर सरकार बनाना चाहते हैं। और उनके समर्थन से हमने महाराष्ट्र में सरकार बनाई। किंतु कल जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से फ्लोर टेस्ट करनी है, ऐसे समय आज श्री अजीत दादा पवार इन्होंने मुझसे मिलकर कहा कि वे इस सरकार में बने नहीं रह सकते और उन्होंने हमको इस्तीफा दिया। तो उनके इस्तीफा देने से अब बहुमत के लिए जितने विधायक चाहिए उतने भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम इस्तीफा देंगे
और उस दृष्टि से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं स्वयं माननीय राज्यपाल जी के पास जाने वाला हूं और इस्तीफा देने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी ने यह पहले से तय किया था कि हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे और इसलिए हमने कभी भी किसी विधायक को तोड़ने की कोशिश नहीं की। हमारे ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप जो लगाते हैं, उन्होंने तो सत्ता के लिए पूरा का पूरा अस्तबल खरीद लिया और सत्ता के पीछे सारी चीजें उन्होंने गौण कर दी। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज ये तीन पार्टियां एकत्रित आकर सरकार बनाने का जो विचार कर रही है, मुझे ऐसा लगता है ये सरकार अपने बोझ तले दबेगी, क्योंकि ये तीन पहियों की ऐसी गाड़ी है जिसका कोई भी पहिया एक दिशा में नहीं चल सकता। तीनों पहिए तीन दिशाओं में चलेंगे और महाराष्ट्र जैसा अगड़ा राज्य, इसकी क्या परिस्थिति होगी इसके बारे में मैं कह नहीं सकता। लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी के रूप में तय किया है, हम विपक्ष में बैठेंगे, एक जागरूक विपक्ष का काम हम करेंगे, जनता का आवाज हम बनेंगे, किसानों की, गरीबों की, सर्वसामान्य लोगों की समस्याएं सरकार तक ले जाएंगे, उसके लिए लड़ेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। जो काम हिंदुस्तानी दस्तूर को मंजूर किए जाने की 70वीं सालगिरह के मौके पर पार्लियामेंट का एक मुश्तरक इजलास आज मुनक्किद हुआ। इससे खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दस्तूर की कबूलियत अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाती है। उन्होंने अपनी तकरीर में इमरजेंसी का हवाला भी दिया और कहा कि मुल्क के अवाम ने दस्तूर को और उसकी रूह को मजरूह करने की कोशिश को बुरी तरह नाकाम बनाया। अपोजिशन जमातों ने महाराष्ट्र में बीजेपी की हुकूमत बनाने गवर्नर के रोल के खिलाफ बतौर एहतजाज इस इजलास का बाइकाट किया। इस मुश्तरका इजलास में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू के अलावा दोनों ऐवानों के अरकान शरीक थे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी ने हुकूक और फराइज की वाज़ेह तशरीह की थी। हमारा दस्तूर हिंदुस्तान का विखार और हिंदुस्तान की शान के अलावा हिंदुस्तान में इत्तेहाद की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म ने दस्तूर साजी के लिए राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, आचार्य कृपलानी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खिदमत और उनकी कोशिशों को याद किया। न्यूयॉर्क में मुनक़िदा 47वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड तकरीब में मैक माफिया को बेहतरीन ड्रामा करार दिया गया। इस ड्रामे में अहम किरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाया है। ये खबर आम होते ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी को उनके ट्विटर अकाउंट पर मुबारकबादियों का सिलसिला शुरू हो गया। नवाजुद्दीन ने अवार्ड लेते हुए अपनी तस्वीर भी ट्वीट की है। 45 साल अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मैक माफिया में हिंदुस्तानी बिजनेसमैन दिल्ली महमूद का रोल अदा किया है। तकरीम अवार्ड की तकरीब में फिल्म मेकर अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी, जोया अख्तर, दीपाकर बनर्जी, करण जौहर, अदाकारा राधिका आप्टे और कुबरा सेठ भी मौजूद थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।